Hello everyone. Today I am going to explain automobile engineering. First of all, we have to know about what is automobile engineering. The automobile is a word says that an engine which is mobile or which can be moved is known as automobile, and the engineering which is involved in this automobile engine is known as automobile engineering. And different types of auto vehicles and different mobiles of automotive systems which can be moved from one place to another place are known as automotive engines, automobile vehicles, and the engine which is used in these vehicles is known as automotive engines. As you have seen here, that different types of bikes, scooters, car, truck, different types of all these types of equipment which are moved from one place to another place with embedded in the engine in this system is known as automobile engine. And the engineering, that like which type of modification, which type of correction, and how to increase efficiency, how to modify these things, and lots of things are involved in this type of engine are known as automobile engineering. So first of all, we have to explain the classification of an auto vehicles. The different types of auto vehicles होती हैं, how we can classify all these type of auto vehicles classification. The first classification type is uh, number of wheel. And the automobiles, the basic classification of automotive vehicles is how much wheel are involved in this automotive vehicle, like two wheeler, three wheeler, four wheeler, six wheeler. As there are as we go for the larger vehicles, the number of wheels are increases in these vehicles, and on the basis of these wheel we can easily classify the automotive vehicles. The second type of classification is type or power plant or prime movers used, means किस टाइप का हम प्राइम मूवर्स या किस टाइप का हम पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं अपने इंजन में, मीन्स जो आपका एनर्जी सोर्स बेसिकली है वो आपका क्या है. जस्ट लाइक स्टीम इंजन, आईसी इंजन फर्दर क्लासिफाइड एज पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन. फर्दर इलेक्ट्रिक पावर इंजन और बैटरी इंजन और सोलर पावर ड्रिवन व्हीकल, different types of power sources by which you can run your auto vehicle. So this is the other type of classification on which based on the power types of power of the prime movers, या type of power plant on which, on the basis of which you can classify your automotive vehicles. Further, the next classification is on the basis of the weight of the vehicle, like lightweight, medium weight, heavy weight, extra heavy weight, etc. As we go for we describe the different types of auto vehicles. Yeah, or we can say that the classification of auto vehicle can also be provided on the basis of their weights. Further classification on the basis of purpose serve. जो बेसिकली आपका ऑटो व्हीकल है वो आपको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, लाइक पब्लिक पर्पस, ट्रांसपोर्ट पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस आपके होते हैं जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. Further, the other classification is on the basis of fuel used, like which type of fuel you have used in your automobile engine. Like first the liquid fuel, if you go for liquid fuel, then further the petrol and diesel. Different types of fuel are also gaseous fuel, like you have seen that different model vehicles in which CNG, LPG, different types of kits are used. Further, the new type of invention are also going on the different types of vehicles and different types of fuels. So on the basis of fuel you can easily classify the auto vehicles. The further classification on the basis of type of wheel driven system, means your auto vehicle is which type of wheel driven system, front wheel driven system, rear wheel driven system or four wheel driven system. If you go for a four wheel vehicle, then in a four wheeler few vehicles are available in market which are front wheel driven vehicle, means the power which is available in the front wheel of the vehicles. If few vehicles are also available in which are known as rear wheel driven vehicles, इसमें आपके जो रियर व्हील्स आपके होते हैं, इंजन से पावर हम रियर व्हील्स को सप्लाई करते हैं एंड आफ्टर डेट वो व्हीकल को पुश करते हैं जिसके थ्रू व्हीकल आपकी मूव करती है. फर्दर फ्यू व्हीकल्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके फोर व्हील ड्रिवन व्हीकल होते हैं, मीन्स उसके जो आपके जो फ्रंट एंड रियर जो भी आपके व्हील्स हैं सब में आपकी पावर सप्लाई होती है और उसके थ्रू व्हीकल आपकी रन करती है.
Further classification on the basis of engine capacity, like generally we have also used for defining the different types of engine, like this engine, this vehicle, this automobile is a 100cc engine, this automobile has 150cc engine, 200cc, 800cc, different types of, on the basis of their engine power, different types of engine capacity are available. What is the basic things behind this engine capacity? जब कभी हम किसी व्हीकल में जो सीसी की बात करते हैं, सीसी बेसिकली होता है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी. क्यूबिक कैपेसिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इंजन रिक्वायर्ड टू गिव अ वन पावर स्ट्रोक. तो उसके लिए बेसिकली वन पावर स्ट्रोक के लिए जो आपका चार्ज होता है वो उस इंजन का स्विप वॉल्यूम होता है, और जो स्विप वॉल्यूम आपका होता है मीन्स कितना वॉल्यूम को इंजन स्विप कर रहा है, वही बेसिकली उसको डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर इंजन की कैपेसिटी. तो इस कैपेसिटी के बेसिस पर हम फर्दर इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द पर्पस ऑफ देयर यूज और देयर लाइक स्पोर्ट्स व्हीकल, लग्जरी, हाई एल्टीट्यूड व्हीकल, दिस आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. Further classification automobile engine auto vehicle is special purpose vehicle. Few vehicles are not considered any type of vehicle, like you can't say that it is a public vehicle, it is a transportation vehicle, it is a 4-wheeler, it is 6-wheeler. These are the special purpose vehicles. That you have seen that road roller. जो रोड रोलर आपने देखा होगा तो उसमें बेसिकली जो व्हील्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है, व्हीकल्स का वेट आपका एक्स्ट्रा हैवी वेट्स हो जाता है. समटाइम्स यू हैव आल्सो सीन दैट different types of vehicles which are used in for mining purposes and for other purposes. तो ये आपके जो भी व्हीकल होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, और वो एक किसी पर्टिकुलर, अगर आप कैटेगरी की बात करो कि ये रियर व्हील ड्रिवन है या फ्रंट व्हील ड्रिवन है, वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं. वो उनका पर्पस अलग है, उनके अलग से एक केस में डिज़ाइन आपकी होती हैं. तो these are the few classification of an auto vehicles by which you can describe or you can differentiate different types of vehicles. Now further the status of modern automobile. अगर हम बात करते हैं जो हमारे मॉडर्न एरा के जो हमारे ऑटो व्हीकल्स है, इनका कौन सा स्टेटस है, और ये आपके डिफरेंट जनरेशन ऑफ ऑटो व्हीकल्स आपके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑटोमोबाइल होते हैं, उनको डिफरेंट जनरेशन्स में कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं. तो स्टेटस ऑफ ऑटो व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न ऑटो व्हीकल्स की बात करते हैं, तो वो बेसिकली 4 जनरेशन्स में आपके डिवाइड किए गए हैं. सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन 1 ऑटोमोबाइल. द जनरेशन 1 ऑटोमोबाइल आर नाइदर efficient nor economic. The conventional auto vehicles which we have used in past are known as generation 1 automobiles. They are not much efficient just because of heavy amount of fuels are required to burn these vehicles. These are not economic. The speed of these vehicles is are very slow. The weight of those vehicles are very heavy. So on this basis we can say that generation 1 automobiles are neither efficient nor economic. Now further, generation 2 automobiles. Generation 2 automobiles are more efficient, less fuel consuming and lighter weight. And on the base on comparing the by generation 2 automobile from the generation 1 automobile, we see here that the generation 2 automobile few modifications are takes place, few you can say improvement takes place. On the basis of this improvement, the generation 2 automobiles are more efficient than the generation 1 automobiles. They consume less fuel, they are lightweighted, and they are more efficient in comparison to generation 1 automobile. Further, generation 3 automobiles. Generation 3 automobiles are those automobiles which are going to start, whose era is going to start, or we can say that these types of automobiles are using nowadays, on which different types of inventions are occurs. So generation 3 automobiles based on the rotary piston engine. Yes, the rotary piston engine are different types of work on going on this type of engine. The rotary piston engine are also known as a Wankel engine, and these are the very efficient, lightweighted, and does not require many component as in reciprocating engine. So
And agar if we are talking about generation 2 and generation 1 automobile engine, these engines uses reciprocating engines, while in case of generation 3 automobiles, in place of reciprocating engine, rotary engines are used. These are lightweighted, less fuel consuming, and less equipments are required in this type of engines. Further, generation 4 automobiles are those automobiles on which work will be done in future, but nowadays this type of vehicle are not used. Generation 4 automobiles are, they have yet not established. Fuel will be used like nascent hydrogen, and the like hybrid power vehicle, solar energy powered, computer control, and zero emission vehicle have a bright future. The generation 4 vehicles are the future vehicles which will be on the work is going on, and which will see in future, but now this type of vehicle are not available. So these are the status of modern vehicles, and these are the classification, or you can say that different generations of auto vehicles: generation 1, 2, 3, and 4. Further, the next thing is principles of design of main component. अगर हम अपने किसी ऑटो व्हीकल्स की बात करते हैं, तो ऑटो व्हीकल्स आपके इंजन में जो आपके मेन कंपोनेंट हैं, उनकी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग क्या है, वो आपके डिफरेंट अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और क्या वो कैसे वो ऑपरेट करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ मेन कंपोनेंट, तो आपके किसी भी ऑटो व्हीकल्स में ह्यूज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हो, और उन कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनका अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग की डिज़ाइनिंग कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ मेन कंपोनेंट में। मेन कंपोनेंट इज सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक इज अ टाइप ऑफ इज अ सिंगल बॉडी कास्टेड प्रोडक्ट। जो पूरा आपका ब्लॉक होता है वो एक सिंगल कास्टिंग प्रोडक्ट आपका होता है। वो चाहे आपका सिलेंडर ब्लॉक की जो हम बात कर रहे हैं, अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है उस केस में भी, और अगर आप किसी व्हीकल में मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ कर रहे हो, तो वो मल्टी सिलेंडर इंजन भी एक सिंगल कास्टेड प्रोडक्ट होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक्स की, तो सिलेंडर ब्लॉक एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लाइक यू सी हियर दैट देयर आर सिलेंडर्स होल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विच दिस इज अ 4 सिलेंडर इंजन। These are the 4 cylinders available in your cylinder block, and these cylinder blocks are casting products. Further you see here these are the, for every cylinder there are the inlet and exhaust valve arrangement are also available. So, and yeah, the water jacket arrangement is also available, from which the water goes from one side, and the heated water after heat removing from the cylinder goes to the other side. So it is a very complicated product in which different types of arrangements are done, and all these arrangements are very important. If there is any type of hindrance or any type of disturbance generated, then this whole product will be defective, what I says as a defective product. तो अगर हम बात करते हैं इसके मटेरियल की, तो बेसिकली आपका एल्युमिनियम कास्टेड प्रोडक्ट का आपका बना होता है, आपका एल्युमिनियम एलॉय का आपका सिलेंडर ब्लॉक डिज़ाइन किया जाता है। एंड द रीज़न बिहाइंड ऑफ यूजिंग एल्युमिनियम एलॉय इज दैट द एल्युमिनियम इज अ हाईली कंडक्टिव मटेरियल, एंड इन सिलेंडर ब्लॉक आफ्टर कंबशन ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड. Most of the heat is used by the piston in the form of pressure, by which piston reciprocates, and the few amounts of heat is wasted into the form of heating the surrounding. तो जो सराउंडिंग में जो आपके हीट जनरेट आपकी होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो भी हमारा एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक हमारा हीट होगा, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस आपके शुरू स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको हीट रिमूव करने के लिए एक वाटर जैकेट बनाई जाती है। हर सिलेंडर के सराउंडिंग में अगर आप बात करोगे, तो वाटर जैकेट होगी, जिसके थ्रू वाटर सर्कुलेट होता जाएगा, और वाटर सर्कुलेट होकर वहाँ से आपका बाहर की तरफ सप्लाई होता है। तो ये हमारा एक डायग्राम है सिलेंडर ब्लॉक्स का, जिसमें मल्टीपल अरेंजमेंट्स आप करते हो। ये पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं, तो ये सिलेंडर ब्लॉक एक सिंगल कास्टेड प्रोडक्ट है। इसमें अलग अलग पार्ट्स को हम ऐड करके असेंबल करके नहीं बनाते हैं, ये पूरा एक सिंगल कास्टेड प्रोडक्ट होता है। आइदर इट इज अ सिंगल सिलेंडर इंजन, और इट इज विल बी अ मल्टी सिलेंडर इंजन।
फर्दर नेक्स्ट कंपोनेंट इज cylinder head. Yes, cylinder head is also another single casted component. As you see here that this is a cylinder, then at the top of the cylinder a cylinder head is mounted and which is bolted at different positions. तो सिलेंडर ब्लॉक्स जो में का जो अरेंजमेंट आपका होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें वॉल्व के लिए पॉकेट्स बनी होती हैं जिसके थ्रू वॉल्व अरेंजमेंट आप अरेंज करते हो। प्लस अगर आप पेट्रोल इंजन यूज़ कर रहे हो तो स्पार्क प्लग एरिया वहाँ होता है जहाँ पर स्पार्क प्लग माउंट करते हो। अगर आप डीजल इंजन यूज़ कर रहे हो तो डीजल के लिए इंजेक्टर वहाँ माउंटेड होता है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेंडर हेड की, तो सिलेंडर के ऊपर जो टॉप पोर्शन जो उसकी पैकिंग जो उसका कवर आपका होता है वो बेसिकली सिलेंडर हेड कहलाता है। इसमें वॉल्व एरियाज, आपका स्पार्क प्लग एरिया एंड डिफरेंट अदर आपके स्लॉट्स होते हैं जो इंजन के यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ करते हैं। फर्दर नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिलेंडर लाइनर और सिलेंडर स्लीव। अब बेसिकली बात करते हैं तो ये आपका देखिए अभी तक हमने आपको बात किया थी बाहर से सिलेंडर का और जो सिलेंडर बॉडी आपकी है, सिलेंडर ब्लॉक है, वो कैसा होता है। अगर हम एक सिलेंडर की बात करते हैं तो देखिए ये आपका पूरा एक एरिया सिलेंडर एक एरिया है। अगर हम इसमें अरेंज करेंगे तो ये आपका पिस्टन अरेंज हो जाएगा और ये नीचे चला जाए। एक मिनट आप फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। इस सिलेंडर में यहाँ पर एक पिस्टन अरेंज हो जाएगा, वो पिस्टन नीचे क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जाएगा और ये पिस्टन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन पिस्टन आपका प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली सिलेंडर है। टॉप पे आप देख रहे हैं सिलेंडर हेड आपका माउंटेड है। अगर इससे बात करते हैं तो हेड गैस्केट है। हेड गैस्केट बेसिकली जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में गैस्केट लगा देते हैं जिससे वहाँ पर जो आपके बर्न चार्जेस है या फ्रेश चार्जेस जो भी आपका है, क्योंकि अंदर हाईली कंप्रेस्ड गैसेस आपकी होती हैं तो वहाँ से लीक करके बाहर न निकले, इसलिए यहाँ पर हेड गैस्केट आपके मान करते हो। फर्दर क्लोज डेक लगा होता है जो क्लोज करता है पूरे सराउंडिंग को, और उसके बाद में फर्दर वाटर जैकेट आपके प्रोवाइड होती है। जो हम बात कर रहे थे आपके सिलेंडर के सराउंडिंग में आप एक वाटर जैकेट प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू वाटर सर्कुलेट करता है और वह आपके इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेंडर लाइनर की, बेसिकली सिलेंडर लाइनर आपके सिलेंडर लाइनर से पहले समझ लीजिए होता क्या है। जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर के इनर सरफेस पर आप लाइनर या आप एक डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर देते हो जिससे अगर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि अच्छा यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जब ये पिस्टन आपका यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो ये वॉल्स को रब करेगा। इन वॉल्स को रब करने की वजह से क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यह आपका पिस्टन, चूंकि पिस्टन के केस में क्या होता है, पिस्टन में यहाँ पर आपकी अभी हम आगे बताएंगे पिस्टन रिंग्स पड़ी होती हैं। इन रिंग्स का काम आपका होता है, जो भी आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में अगर पिस्टन रब कर रहा है तो पिस्टन डायरेक्टली रब नहीं करता है बल्कि पिस्टन के आउटर पेरिफेरी पर आपके रिंग्स लगी होती हैं। ये रिंग्स पिस्टन को स्लाइड करती हैं, रब करती हैं। तो होता क्या है, कॉन्टिन्यूसली जब पिस्टन रन करता है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये रिंग्स आपके डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, रिंग्स का वियर होता है। फर्दर चूंकि सिलेंडर पर रब कर रही हैं तो सिलेंडर्स का भी वियर एंड टियर होगा। तो हमें पूरी सिलेंडर बॉडी को ना चेंज करना पड़े, इसलिए हम सिलेंडर के इनर पार्ट पे सिलेंडर लाइनर लगा देते हैं जिसके आफ्टर रनिंग हमने क्या किया, अगर मान लीजिए आपका सिलेंडर आपका पूरा अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर पर सिलेंडर लाइनर लगा दिया, पिस्टन यहाँ पर आपका रब कर रहा था एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब पिस्टन रिंग्स आपके डैमेज हो गए तो यहाँ पर आपने रिंग बदल दिया, तो पूरे पिस्टन को बदलने से आप बच गए। प्लस साथ में जो आपको यहाँ पर रब कर रहे थे सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के लाइनर जो आपका हेड चेंज हो गया तो आपने एक लाइनर हटा कर दूसरा लाइनर लगा दिया। इसकी वजह से आपने सिलेंडर और पिस्टन की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी है वो आपकी वहाँ पर आपकी सेफ हो जाती है। मीन्स जो इंजन है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। फर्दर बात करते हैं जो लाइनर के लिए, तो लाइनर आपके दो टाइप के आपके हैं, एक आपका है ड्राई लाइनर और एक है आपका वेट लाइनर। तो वो इंजन जहाँ पर आपका जो लाइनर आपका है, ये जो आपका इनर पार्ट देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपका एक है, देखिए दो टाइप के लाइनर हैं, एक डिटैचेबल लाइनर आपका है और फर्दर सेकंड बात करते हैं तो इंटीग्रली कास्टेड लाइनर है। मीन्स ये सिलेंडर के साथ में ही आपने इस लाइनर को कास्ट कर दिया था। और फर्दर अगर वेट लाइनर की बात करते हैं तो वेट लाइनर आपका वो लाइनर आपका होता है जो, अच्छा पहले हम ड्राई लाइनर की बात कर लेते हैं। ड्राई लाइनर वो लाइनर होता है जहाँ पर लाइनर और वाटर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये वाटर जैकेट है और ये आपका लाइनर है, तो जहाँ कहीं पर लाइनर और वाटर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है वो बेसिकली कहलाता है ड्राई लाइनर। अच्छा, लाइनर का एक एडवांटेज और भी है, क्योंकि हम आपसे बताया था हमने आपको कि जो भी आप
सिलेंडर ब्लॉक आप यूज़ करते हो, वो सिलेंडर ब्लॉक बेसिकली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय मटेरियल, just because of high conductivity of aluminum alloy and huge amount of energy is generated into the cylinder. And as I am already told you that the cylinder and piston rubs each other if and the aluminum is just very soft material. So after uh, huge amount of reciprocating motion, the aluminum alloy will be distorted very smoothly, very easily, and the maintenance cost of engine will be high. तो इस इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सिलेंडर लाइनर आपका लगा होता है वो सिलेंडर लाइनर को हम कास्ट आयरन मटेरियल का ड्रॉ कर देते हैं। कास्ट आयरन मटेरियल की वजह से इस पर्टिकुलर मटेरियल की लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाती है, जिससे जो आपका पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है तो वहाँ पर डैमेज भी कम होगा, और जो आपका हीट रिमूवल एबिलिटी आपकी इंजन की होनी चाहिए थी तो वो आपके एल्युमिनियम या एल्युमिनियम एलॉय प्रोडक्ट की वजह से उसमें हीट रिमूवल एबिलिटी भी आपकी मेंटेन रहती है। तो ये बेसिकली पर्पस आपका होता है सिलेंडर लाइनर का, कि एक तो इंजन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, और सेकंड जो आपका एल्युमिनियम एलॉय का जो आपका सिलेंडर ब्लॉक था उसमें कास्ट आयरन मटेरियल की सिलेंडर ब्लॉक लगा सके, जिससे उसकी लाइफ को आप इनहेंस कर सकते हो। फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं तो वेट लाइनर। वेट लाइनर के केस में जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हो, वेट लाइनर अगेन आपके दो टाइप के हैं, एक आपका डिटैचेबल है, एक आपका कास्टेड आपका हो गया। अगर हम डिटैचेबल की बात करते हैं या कास्टेड दोनों की बात करते हैं तो वेट लाइनर के केस में आप फिर से देख रहे हो कि जो भी आपका लाइनर है वो लाइनर आपका डायरेक्टली वाटर के साथ कांटेक्ट में है। देखिए यहाँ वाटर जैकेट है और ये आपका लाइनर है, तो जहाँ कहीं लाइनर डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आपका होता है वो कहलाता है वेट लाइनर, और जहाँ पर आप जिस फिगर में या जिस पर्टिकुलर इंजन में जो आपका लाइनर आपके वाटर कांटेक्ट में नहीं होता है, सर्टेन डिस्टेंस पर होता है, वो आपका कहलाता है आपका ड्राई लाइनर। Further, next component of an engine is manifold. Manifold is basically is a type of passage, या you in other word you can say that it is a type of tube from which inlet. These manifolds are a two type. Like first is inlet manifold, or you can say intake manifold, and second is, yes, the things are shown here. First is intake manifold, and second is outlet or exhaust manifold. The inlet manifold is a fold by which the fresh charge, or you can say that in case of SI engine, the air and fuel mixture is provided from carburetor into the combustion chamber. So you can say that the inlet valve is also arranged. If I am say about the valve is also arranged into the process of the inlet tube, and the inlet tube is a simple, you can say, as a connecting arrangement between the carburetor and the cylinder. And other type of manifold is outlet or exhaust manifold, by which after combustion the burnt gases which is generated into the cylinder goes from exhaust valve into the exhaust manifold या outlet manifold, and from this outlet manifold silencer is attached and the burnt gases flew off into the atmosphere. So the manifold are of two type: inlet manifold, by which the fresh charge or charge and fuel mixture, you can say that air or air and fuel mixture is supplied into the combustion chamber, and the exhaust outlet manifold is from by which burnt gases are flew off into the atmosphere. These are the diagrams of the inlet and exhaust manifold. Yes, the lower one is inlet manifold and the upper one is exhaust manifold. As you see here that inlet manifold, the holes, just a minute. Yes, as you see here that in inlet manifold few connections, a few holes are shown here. The first one is, the larger hole is connection to air cleaner. देखिए ये आपका एक कनेक्शन है जो आपका एयर क्लीनर से कनेक्ट होता है। जो क्लीन एयर आपकी आती है वो आपके इनलेट मैनिफोल्ड के एक पासेज को दी जाती है, और यहाँ से ये आपके अलग अलग पाइप के थ्रू डिफरेंट अलग अलग अरेंजमेंट्स में या सिलेंडर्स में सप्लाई करता है। फर्दर, होल्स फॉर कार्बोरेटर माउंटिंग स्टड, जो कार्बोरेटर माउंटिंग स्टड है वहाँ से अटैच करने के लिए फर्दर आपने होल को मेंटेन कर रखा है। और अगर बात करते हैं, देखिए ये जो इनलेट मैनिफोल्ड दिखाया गया है ये बेसिकली 4 सिलेंडर इंजन के लिए है, कि जो भी फ्रेश चार्ज, फ्रेश एयर और जो आपका कार्बोरेटर से जो आपका चार्ज आपका आया वो आपका इनलेट मैनिफोल्ड में सप्लाई हुआ, और इनलेट मैनिफोल्ड से वो आपके डिफरेंट अलग अलग सिलेंडर में 1, 2, 3 और ये आपका 4,
ये 4 आपके डिफरेंट अलग अलग सिलेंडर्स में यहाँ से आपका सप्लाई होता है। जो आपके अलग अलग सिलेंडर्स हैं उनमें वन आफ्टर अनदर आपका चार्ज सप्लाई होगा और चार्ज आपका बर्न होगा। तो ये बेसिकली आपका है इनलेट मैनिफोल्ड। जस्ट लाइक इन सिंपल वर्ड यू कैन से ये एक पाइप अरेंजमेंट की फॉर्म में होता है जो अलग अलग सिलेंडर्स को इनटेक सिस्टम से अटैच करता है। Similarly, you can see here the exhaust manifold, and the exhaust manifold you see here that these 4 types of exhaust pipe 1, 2, 3 and 4. These all the exhaust pipe are attached to the exhaust port or exhaust valve of a cylinder. जब सिलेंडर में कंबशन होता है तो वहाँ पर जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इन पाइप के थ्रू आपका ये पाइप उससे अटैच होंगे। इन पाइप्स में आपका वो एग्जॉस्ट प्रोसेस आपका जो आपका बर्न फ्यूल है वो आपका सप्लाई होगा। वो सप्लाई होकर फर्दर आपका एक सिंगल पाइप में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपका बर्न चार्ज एक सिंगल पाइप में जाएंगे। यहाँ से फर्दर आपका साइलेंसर अटैच आपका होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका साइलेंसर अटैच हो जाएगा, साइलेंसर में चार्ज जाएगा। साइलेंसर मफलर्स आपके होते हैं जो उसके नॉइस को प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और मफलर्स होने के बाद में फर्दर ये आपका जो चार्ज आपका है ये आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस होती है आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की। फर्दर अदर कंपोनेंट्स of an automobile engine, yeah, basic principle behind these components. The next most important component, this is a very very important component of an engine, you can say here. This is the piston, and the piston is generally made of, again it is made of it made of light weighted material, like you can say that aluminum alloy. And the working of this piston you can see here, it should be capable of sustaining. Yes, the piston, as we explain here, it is made of aluminum alloy material, and the functioning, the main purpose of this aluminum alloy is the piston is to sustain different types of load and different types of pressure. First, hammering effect of the combustion gas pressure. अब हम देखिए यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे कि जो पिस्टन है वो आपका एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, और हम बता चुके हैं एल्युमिनियम आपका बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन हम यहाँ पर एल्युमिनियम एलॉय इसलिए यूज़ करते हैं जिससे उसकी हार्डनिंग किया जा सके, उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें कंपाउंड ऐड करके उसको बेटर फॉर्म में हम उसको ला सकें। अब देखिए जो भी आपका पिस्टन है वो इतना हार्ड या इतना सस्टेनेबल आपका होना चाहिए कि आफ्टर कंबशन जो हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, जो आपके सिलेंडर हेड पर अगर बात करें हम, जो एक्सेसिव इम्पैक्ट जनरेट होता है उस हैमरिंग इम्पैक्ट को वो सस्टेन कर सकें। तो ये बेसिकली एक पर्पस आपका होना चाहिए आपका पिस्टन का। जब पिस्टन को हमें ड्रॉ करना है तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए। फर्दर, टू सस्टेन फ्लक्चुएटिंग लोड, just because of that after combustion different types of pressure waves are generated, and these pressure waves are impacted one after another into the cylinder, and due to this impact the fluctuating loads are generated into the cylinder at the top of the piston. So the piston should be have the capacity to sustain this type of fluctuating load. Further, high temperature of gases, yes, just because of that after combustion different types of pressure waves and different types of burnt gases are generated into the combustion chamber, and these burnt gases also heated the cylinder walls and the top of the piston. So your piston should be have made of such material so that it can bear this type of heat, and also can transfer heat from the piston and cylinder bodies. तो आपका जो पिस्टन है बेसिकली इसीलिए हम उसको एल्युमिनियम एलॉय का बनाते हैं कि जो भी वहाँ पर आपकी हीट जनरेट हो रही है, क्योंकि एल्युमिनियम आपका हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, उस हीट को ट्रांसफ़र कर सके आपके जो भी, अगर आपका एयर कूलिंग सिस्टम है तो एयर में, अगर वाटर कूलिंग सिस्टम है तो वाटर में उसको कूलिंग कर सके, और बेटर कूलिंग और इजली फ्रिक्वेंटली कूलिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये बेसिकली हमारे आगे किसी पिस्टन को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी इतनी सस्टेनेबल कैपेबिलिटी आपकी इन कंपोनेंट्स की होनी चाहिए। फर्दर बात करते हैं, योर पिस्टन शुड आल्सो बी लाइट इन वेट, लाइट वेट हमारा होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम किसी हैवी मेटल्स का नहीं बना सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट दिस इज आल्सो अनदर रीजन, बिकॉज ऑफ डैट आई एम यूजिंग द एल्युमिनियम एलॉय फॉर मेकिंग दिस पिस्टन। साइलेंट इन ऑपरेशन मीन्स देयर शुड बी नो लॉट्स ऑफ रबिंग, नो लॉट्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ components which are attached into a cylinder.
and just because of that the cylinder is made as a single body, not different components are attached or tightened to generate a system piston. Further, another मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, जो पिस्टन आपका होना चाहिए वो मैकेनिकली आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ डेट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर वेव्स आपको जनरेट हो रही हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड आपको जनरेट हो रहा है, हैमरिंग इफेक्ट है, इन सबको इजली वो सस्टेन कर सकें। तो ये आपके बेसिकली वर्किंग होती है अगर हम बात करते हैं ये पिस्टन की। फर्दर अब देखिए यहाँ थोड़ा डायग्राम हम देख लेते हैं। पिस्टन की बात करते हैं तो पिस्टन का जो टॉप पोर्शन होता है, जो टॉप पोर्शन आप देख रहे हो, ये कहलाता है पिस्टन का क्राउन, मीन्स जो पिस्टन का टॉप है वो कहलाता है पिस्टन का क्राउन। फर्दर बात करते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पर अलग अलग आप ग्रूव देख रहे हो जिसको कहते हैं रिंग ग्रूव। यहाँ पर इन ग्रूव्स में हम बेसिकली अगर बात करें तो अगर ये आपका कहीं ग्रूव्स है तो ग्रूव्स में पिस्टन रिंग्स हम एक रिंग के फॉर्म में पिस्टन के रिंग्स उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये जो आप ग्रूव्स देख रहे थे इनको बोलते हैं रिंग ग्रूव्स, और ये रिंग ग्रूव्स आपकी होती है पिस्टन रिंग को इसके ऊपर माउंट करने के लिए। और जो ग्रूव्स के फर्दर जो आपका हाइटेड एरिया है और जो कह सकते हो जो अपर एरिया आपका होता है ये कहलाता है आपका लैंड। सो जो सबसे टॉप लैंड आपका होता है वो बेसिकली कहलाता है फर्स्ट लैंड, फर्दर सेकंड लैंड एंड आपका थर्ड लैंड। तो ये डिफरेंट आपके लैंड्स होते हैं और इन लैंड के जो आपका जस्ट एडजेसेंट में जो आपका ग्रूव होता है वो कहलाता है रिंग ग्रूव। इसमें आप पिस्टन रिंग्स को आप अटैच करते हैं। और फर्दर बात करते हैं तो जो पिस्टन के जो साइड आपकी होती है, अगर हम ये पिस्टन की बात करें तो इस फॉर्म में अगर पिस्टन आपका डिज़ाइन आपका है, ये पिस्टन का क्राउन आपका होता है, तो ये पिस्टन की साइड जो आपकी होती है ये कहलाती है स्कर्ट, मीन्स पिस्टन की सराउंडिंग जो आपके बॉडी आपका होता है वो उसकी पिस्टन की स्कर्ट कहलाती है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखें तो लोअर पार्ट में देखिए सिलेंडर वॉश दिखाया गया है। इस सिलेंडर वॉश में पिस्टन ये आपका रब करेगा और रब करने की वजह से वहाँ पर आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन अपना प्रोवाइड करता है। Yes, one more thing you will see here, the oil drain hole. ऑयल ड्रेन होल भी आपके पिस्टन से प्रोवाइड किए जाते हैं और इनका बेसिकली पर्पस आपका होता है जब पिस्टन, अभी हम फर्दर आपको आगे जब अदर कंपोनेंट्स की बात कराएंगे तो आपको शो होगा कैसे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ऑयल सप्लाई होता है। जो ऑयल्स आपका पिस्टन में आपका कनेक्टिंग रॉड में आता है वो आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर राइज करता है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर गजन पिन माउंट होती है। कनेक्टिंग रॉड को हम यहीं पर लगा के गजन पिन के थ्रू हम पिस्टन से अटैच करते हैं, यही इस एरिया पर पिस्टन आपका अटैच होता है कनेक्टिंग रॉड से। तो यहाँ तक आपका ऑयल कनेक्टिंग रॉड के थ्रू आता है, वहाँ पर कैपिलरी एक्शन प्रोवाइड होता है, वहाँ से आपका ऑयल राइज करेगा और ये आपका इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर इस रिंग एरिया में आपका और रिंग ग्रूव में आपका ऑयल सप्लाई होता है। और यहाँ पर जो आपकी रिंग सप्लाई होती हैं अगेन आपकी स्लॉटेड या आप कह सकते हो होल्ड रिंग आपकी होती हैं जिसमें आपके रिंग में होल बने होते हैं। ऑयल यहाँ से स्पिल करके बाहर आता है और वो सिलेंडर की वॉल्स में जो आपके सिलेंडर की वॉल है वहाँ पर ऑयलिंग करता है, जिसकी वजह से इंजन में आपका फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करने में या फिर फर्दर जो आपके ऑयल के पर्पसेस हैं सीलिंग प्रोवाइड करना या कूलिंग करना वो फर्दर आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपका बेसिक पर्पस आपका एक अदर पर्पस आपका हो गया पिस्टन का कि पिस्टन के जो पर्पस है वो क्या है, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिस्टन की बात करें या सिलेंडर की बात करें दोनों आपके एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वन मोर थिंग हेयर, आपसे हम नॉर्मल केसेस में कहते हैं कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रहता है और रब करता है, लेकिन अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो जो आपका रिंग ग्रूव्स है इस रिंग ग्रूव में आपका पिस्टन रिंग्स रहेंगी और ये बेसिकली रिंग आपकी रब करती हैं आपके सिलेंडर लाइनर को। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन रिंग बोथ आर मेड ऑफ कास्ट आयरन मटेरियल। Yes, till now I am talking about what is a piston ring and different types of slotted rings and flex ring. Yes, you can see here different types of piston rings and what is the purpose of also the piston ring. Yes, we see here piston ring. Piston ring of in an IC engine or you can say that internal combustion engine are provided to serve the following purposes. अगर हम किसी भी आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हैं या अपना ऑटोमोबाइल इंजन की बात करते हैं तो पिस्टन के रिंग्स के बेसिकली पर्पसेस क्या हैं वो देखिए। आपको पहला आपका है सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द कंबशन चैम्बर इनटू द क्रैंक केस।
अब चूंकि जब हम बात करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की, ये अगर आपका सिलेंडर एरिया है, ये आपका पिस्टन है, इसके अंदर रूफ कर रहा है, और चूंकि आपके कंबशन चैम्बर में बहुत हैवी अमाउंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम डाल के आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं। यस, हाँ, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इसमें यहाँ पर डायग्राम में ये जो अपर पार्ट आपका है, ये जो आपका एक लोअर पार्ट, आप ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, या भी एक मिनट रुक जाइए आप और थोड़ा सा। यस, ये कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट जो आप देख रहे हो, ये तो आपका हो गया सिलेंडर। ठीक, ये सिलेंडर के अंदर जो ये आपकी ऑरेंज लाइनें आप जो देख रहे हो, ये आपकी हो गई पिस्टन, ये सॉरी, ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं तो ये आपका हो गया पिस्टन, और जो पिस्टन के अंदर ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी हैं, ये आपकी हैं पिस्टन रिंग्स। अब इस पिस्टन रिंग्स से बात करते हैं, ये देखिए जो सराउंडेड आपका है, ये आपका हो गया पूरा सिलेंडर वाला पार्ट, और यहाँ पर सिलेंडर में एक साइड में इनलेट वाल्व लगा होगा, एक साइड में एग्जॉस्ट वाल्व लगा होगा, और यहाँ पर आपका स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा होगा। फर्दर तो इनलेट वाल्व से अटैच एरिया है, ये आपको कहलाता है इनलेट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट वाल्व से जो अटैच एरिया है कहलाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब जिस समय इनलेट वाल्व ओपन है, चार्ज आपका कंबशन चैम्बर के अंदर चार्ज आपका फिल हो गया। अब चार्ज फिल होने के बाद में जैसे पिस्टन आपका ऊपर जाता है और चार्ज को कंप्रेस करता है, देन आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करते हो और अंदर जो पूरा चार्ज है वो आपका बर्न कर जाता है। अब जैसे ही आपका सिलेंडर के अंदर ये पूरा चार्ज आपका बर्न करेगा, तो बर्न होते ही क्या होगा, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर से क्या होगा, ये पिस्टन को पुश करके नीचे भेजेगा। साथ में जो भी आपका सिलेंडर और पिस्टन, आपकी जो आपके जो सिलेंडर है आपका है, और उसके सराउंडिंग में जो आपका पिस्टन है जो अप एंड डाउन मोशन कर रहा था, इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप होगा वॉल्स में। इन वॉल्स की गैप के थ्रू आपकी बर्न गैसेस क्रैंक केस में फ्लो हो जाती हैं, क्योंकि अपर पार्ट में बहुत हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर है। अब जब जब ये बर्न गैसेस लोअर साइड में फ्लो करती हैं, कंबशन चैम्बर में फ्लो होकर आती है, क्रैंक केस में फ्लो होकर आती हैं, तो वहाँ पर डिपॉजिट होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई एग्जॉस्ट वाल आपका नहीं है। और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस कंटेंट, देयर मे बी चांसेस ऑफ कोरोजन एंड अदर टाइप ऑफ डैमेजेस आर आल्सो अकर इनटू दिस क्रैंकेस एरिया। अब जब हम बात करते हैं इन जो कंबशन प्रोडक्ट्स की, तो कंबशन प्रोडक्ट्स में आपके सल्फर कंटेंट होते हैं, कार्बन कंटेंट आपके होते हैं। सल्फर कोरोजन को प्रमोट करता है, कार्बन पार्टिकल्स वॉल से स्टिक करके रबिंग के थ्रू वहाँ पर इरोजन जनरेट करते हैं। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंबशन प्रोडक्ट लोअर साइड में या आपका सिलेंडर में, आपका क्रैंक केस एरिया में ना सके। तो पहला फंक्शन अगर हम बात करें, तो इसका काम आपका होता है पिस्टन रिंग्स का, सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ कंबशन गैसेस इनटू द क्रैंक केस, मींस क्रैंक केस में कंबशन गैसेस ना सकें। फर्दर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्पस की, तो नेक्स्ट पर्पस आपका होता है पैसेज ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम पिस्टन क्राउन टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर। अब चूंकि यही एक कंपोनेंट है जो आपका पिस्टन और आपके सिलेंडर्स के बीच में अटैच है। अगर हम देखिए हम बात करते हैं तो क्या आपका होता है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में ये आपका पिस्टन है, दोनों के बीच में कुछ गैप होता है। इस गैप को फिल करने के लिए पिस्टन रिंग्स लगाते हो, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर पूरे गैप को फिल कर लेता है। अब चूंकि यहाँ पर जो पिस्टन से जो आपका जो सिलेंडर से जो साइड टच कर रही है, वो आपकी पिस्टन रिंग्स ही आपको टच करती हैं। ये जो पिस्टन रिंग्स आपकी हैं, ये पिस्टन रिंग्स ही आपके सिलेंडर को टच करती हैं। तो जो पिस्टन पर जो भी आपकी हीट जनरेट आपकी होगी, वो सिलेंडर तक कैसे पहुंचेगी, पिस्टन रिंग्स के थ्रू पहुंचेगी। और क्योंकि जो कूलिंग अरेंजमेंट है वो सिलेंडर के सराउंडिंग में कर रखा है, वाटर जैकेट सिलेंडर के सराउंडिंग में है, तो हीट डिसिपेट करने का एक ही मेथड है, जो भी पिस्टन की हीट हो वो पिस्टन रिंग्स तक जाए, पिस्टन रिंग सिलेंडर्स को दें, और सिलेंडर उसको वाटर को या एयर को डिसिपेट करके उसको कूल डाउन करें। तो अगेन द सेकेंड पर्पज ऑफ दिस पिस्टन रिंग इज हीट को फ्लो करना आपके पिस्टन क्राउन टू सिलेंडर वॉल। नेक्स्ट, lubricating the cylinder wall to minimize wear. Yes, yeah, I have already told you in the last topic that when I have seen you that in the piston there is a oil groove are available. तो ऑयल ग्रूव का वहाँ पर्पस क्या है कि ऑयल ग्रूव जो आपका उस पिस्टन रिंग ग्रूव में आपका आता है, तो पिस्टन रिंग ग्रूव से आपका वहाँ पर ऑयल आपके सिलेंडर वॉल्स पर जाएगा और उसको लुब्रिकेट करेगा।
और अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके पिस्टन रिंग्स आपकी हैं। ये पिस्टन रिंग्स देखिए दो तरीके की हैं, या फिर कह लें एक ही टाइप की आपकी हैं। इनको रोटेट करके दिखाया गया है कि इनका ओपनिंग एरिया कैसा है। तो ये आपकी होती हैं सॉलिड पिस्टन रिंग, जिनको कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, जो वॉल्स पर कंप्रेशन जनरेट करती हैं और आपके टाइट फिट रहती हैं पिस्टन और सिलेंडर्स के बीच में। फर्दर आपने दो अलग टाइप की ये रिंग देखी हैं। देखिए ये आपकी ऑयल रिंग है। अब यहाँ पर हम एक तरह ये मार्केट आ जाते हैं। ये आपकी ऑयल रिंग है, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्रूव आपका है वो या फिर चैनल के फॉर्म में है या फिर वो आपके होल के फॉर्म में है। तो जो आपका होल या चैनल के फॉर्म में जो आपका ग्रूव होता है वो अगेन आपका पिस्टन के ऊपर हिंज जो आपका हो जाता है उस रिंग के ऊपर, जहाँ उस ग्रीन ग्रूव के ऊपर जहाँ पर आपका आपका ऑयल होल आपका आपका होता है। जो ऑयल होल से जो आपका ऑयल आएगा वो इन पिस्टन रिंग्स पर आएगा। एक मिनट, वो इन पिस्टन रिंग्स के स्लॉट्स पर आएगा। स्लॉट से ऑयल बाहर आएगा और बाहर आके जो आपके सिलेंडर लाइनिंग आपकी है, जो सिलेंडर आपका स्लीव्स आपकी हैं, वहाँ पर आपका लुब्रिकेटिंग करेगा, जिसकी वजह से पिस्टन आपका जाम होने नहीं हो पाएगा और वहाँ पर प्रॉपरली मोबिलाइज आपका मूवमेंट आपका मेंटेन रहेगा। फर्दर बात करते हैं पिस्टन रिंग्स की। तो अगर हम अपने पिस्टन रिंग्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके पिस्टन रिंग्स की हमने बात करी है, ये पिस्टन रिंग्स आपकी दो तरीके की होती है, डायग्राम में शो कर रखा है, कंप्रेशन और गैस रिंग, और सेकेंड आपकी होती है ऑयल कंट्रोल रिंग। ये पिस्टन और गैस रिंग, ये आपकी ऑयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेशन और गैस रिंग की बात करते हैं तो इसकी काउंट किसी एक सिलेंडर इंजन में या एक सिंगल सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में 2 से 5 के बीच में होती है। जबकि ऑयल रिंग की बात करते हैं तो इसकी काउंट आपकी 1 से 2 होती है। ये डिपेंड करता है कि सिलेंडर का शेप कितना है, कितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो आपको प्रोवाइड करना है, कितना हैवी अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेशर आपको जनरेट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका सिलेंडर एंड पिस्टन का साइज आपका होता है। तो जिस हिसाब से उनके साइज और उनके वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिफरेंट कंप्रेशन और कंप्रेशन रिंग और आपके ऑयल रिंग आप यूज़ करते हो। सो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ you can say that automobile combustion automobile products, and a few products are also remaining which I have explained, which I will explain in my next class. Okay, thank you.